Assalamu alaikum students. So this is Sir Yasin with A levels chemistry practical tips and tricks video. So जब भी हम A levels chemistry की बात करते हैं, mostly the students get annoyed कि सर बार बार टाइट्रेशन क्यों करवाई जाती है. But let me tell you, टाइट्रेशन बार बार इसलिए कराई जाती है, A, because it's the easiest of the practicals, and B, it's the most common to come in your exam. Be it acid base titration or redox titration. Acid base titration हम times and again discuss कर चुके हैं in the previous lectures. You can see that on the Slate YouTube page. But in today's lecture हम redox titration को discuss करेंगे. And what are the technical things that we all need to make sure कि redox titration में हम गलती ना करें. So I have this sample paper in front of us जहाँ पे वो कहता है कि iron wire contains impurities. You will investigate the percentage by mass of iron in sample of iron wire. अब जैसे ही टाइट्रेशन आती है, मोल्स साथ में फ्री आ जाता है. You're given an equation already. A sample of iron wire is reacted with excess dilute sulfuric acid to produce iron sulfate. Now हमें वो लिंक बना के दे रहा है कि iron sulfate is given, iron is given, and iron sulfate कैसे बनता है. And you will titrate this solution of iron 2 sulfate with potassium manganate. और जैसे ही potassium manganate की बात आती है, we talk about redox titration, जहां KMnO4 mostly and always goes to the burette, जहां पे हम गलती sometimes कर देते हैं. Then of KMnO4 of known concentration, इसलिए burette में आ रही है, that's the standard, and it reacts with iron. इस reaction में FB1 is KMnO4, FB2 is iron sulfate, and FB3 is dilute sulfuric acid. Now initially we will fill our burette in this experiment, and burette filling के लिए what is the first step? पहले funnel को तो इधर डाल लिया. Check your burette अगर वो नीचे से बंद है या नहीं. You need to check that first. Funnel को थोड़ा सा lift करेंगे so that air does not lock inside. That can cause spilling otherwise. थोड़ा सा KMnO4 डालेंगे and we will wait. अब जैसा कि आपने देखा, there is a lot of leakage. इसका मतलब probably ये सही से बंद नहीं हुई थी. Now what we need to do is हम इसको सही से बंद करेंगे. This is how you see कि आपकी burette खुली हो सकती है, and that is the very reason I did that on purpose. अब हम इसको tightly बंद करें और हम थोड़ा सा ड्रॉप दोबारा ऐड करेंगे KMnO4 का ऊपर से, just to see. Will it leak? Now it's not leaking anymore. If there is a little spillage, हम उसे napkin से we will wash it off. And now if there is no dropping going on, हम अपनी burette को fill करने की तरफ आ जाएंगे. कोशिश करनी है burette को 0 से ऊपर तक भरें पहले. Why? उसका रीजन है this point, and see, it was still not tightly locked. Now it's tightly locked, and up there is no spillage. So spillage किसी से भी हो सकती है. That's a common part of titration, and spillage can easily waste our readings. अब हमने ये देखना होता है कि क्या हमारा KMnO4 नीचे तक चला गया है. This tube needs to be filled with KMnO4. अगर नहीं है, अगर bubbles हैं, what do we do? हम इसको complete pressure के साथ खोलेंगे and इसकी initial reading ले लेंगे. इसको बंद करेंगे. Now, what is the reading that we have? अगर KMnO4 है, so try कि 0 पे ना लेना, because that is never visible. So हमने क्या किया? हमने इसकी रीडिंग ली है 0.4 पे. So that, my students, will become our initial reading for the very rough titration. अगर आप पढ़े इसमें तो it clearly states that fill the burette with FB1. हमने कर लिया. उसके बाद हम rough titration की तरफ move करेंगे, because that is very important. So students, now that our burette is completely filled and it's not leaking anymore, इसका मतलब we are good to go with the next part of the reaction. अब इसके अंदर होगा क्या? burette को हम करते हैं थोड़ी देर साइड पे. अब हम आते हैं मेन परफॉर्मेंस की तरफ.
वी आर प्रोवाइडेड विद FB2. इट क्लियरली स्टेट्स कि आप कॉनिकल फ्लास्क में pipette 25 centimeter cube of FB2 into the conical flask. Now comes the technical part. We have a pipette, we have a pipette filler or pipette bulb. Pipette bulb की वजह क्या होती है यूज करने की? So that it's a safety measure. आप केमिकल को सक्शन के थ्रू नहीं कर रहे. Normally when I was a student, back then we used to suck it off. तो वो केमिकल मुंह में जाने का खतरा होता था. अब pipette filler is the one. So हम pipette filler पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं. My first tip, there are high chances कि जो आपका practical center है वहां पे pipette filler can be faulty. होती है, it's a common fault. So you can get it easily replaced. अब pipette filler पे क्या है? सबसे ऊपर लिखा है A, that is for air. आप इसको deflate करेंगे, you deflate it this way. यहां पे लिखा है S for suction, E for exiting the liquid. So पहले हम FB2 को suck करेंगे suction के लिए and we will see how the liquid goes up. अगर मेरा pipette filler tightly नहीं है, so it will keep going down. And now you can see कि drops नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि it's rightly done. Otherwise अगर ये सही से नहीं लगा होता, so हवा से यहां से निकलता रहता. Now मैं इसको 25 पे लोअर मेनिस्कस को लाऊंगा. It should follow the lower meniscus rule, and then you transfer it back to the conical flask. Now lower meniscus says 25, not the upper meniscus, the lower meniscus. अब हम इसमें ट्रांसफर करेंगे. We'll press the button of the E button, or let's call it a button. E वाला पॉइंट. अब इसमें भी हम एक मसला फेस कर सकते हैं. क्या मसला होता है दिखाता हूं. ये है मसला. थोड़ा सा लिक्विड हमारा लगा रह गया. पहले तो आपने कोशिश करनी है वॉल्स पे ना लगे आपका केमिकल, बिकॉज दैट वोंट रिएक्ट. अगर आपका इस तरह लिक्विड फंस जाता है, जस्ट टेक द फिलर आउट सो दैट सक्शन खत्म होगी और आपका लिक्विड भी चला जाएगा. नाउ इसको साइड पे रखते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप सेज transfer 25 centimeter cube of FB3, which is dilute sulfuric acid, in the conical flask. Sulfuric acid का मकसद क्या है? It increases the oxidizing strength of the oxidizing agent, which is KMnO4, and साथ साथ it provides hydrogen ions. So 25 measuring cylinder, we don't need it to be that accurate, इसलिए पिपेट या ब्यूरेट में नहीं लिया. अगर हमने इसको बहुत एक्यूरेट लेना होता तो हम पिपेट लेते. But इसमें भी we follow the lower meniscus rule and we transfer it to the conical flask. So remember we started off our initial reading as 0.4. अब इसको रखते हैं साइड पे. Let's jump towards titration. You can go through Slate's page. मैंने एक और redox titration की वीडियो डिस्कस की है with hydrogen peroxide, but now this time it's with iron sulfate. These two are the most common ones. Now we lift it up. अब इसमें जो एक कॉमन गलती होती है, the splatter. आपका KMnO4 इसकी वॉल्स पे नहीं लगना चाहिए. Let's confirm the reading again. That's 0.4 centimeter cube. हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे and we will start dripping it. थोड़ा फास्ट कह रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली इतनी जल्दी होना नहीं चाहिए. समटाइम्स होता है स्टूडेंट से कि सर हमने 2 ड्रॉप्स डाले और कलर चेंज हो गए, बिकॉज दैट्स अ कॉमन मिस्टेक व्हेन द स्टूडेंट्स फॉरगेट टू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड. सो अगर बहुत जल्दी कलर चेंज हो रहा है, कलर ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रोबेबली डालना भूल गए थे. नाउ हम तब तक ये चीज करते रहेंगे जब तक कलर थोड़ा ज्यादा लॉन्गर स्टे नहीं करेगा. अभी इफ यू कैन सी द कलर इज डिमिनिशिंग वेरी फास्ट. हम इसे ऐड करते रहेंगे. प्लीज इंश्योर कि KMnO4 साइड्स पे ना लगे. देखो कलर थोड़ी देर स्टे कर रहा है, चला गया. सो दैट डजंट काउंट. कलर हैज टू स्टे परमानेंटली. हम इसको दोबारा करते हैं. एंड देन अगेन दिस इज रफ टाइट्रेशन.
रफ में थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए सो दैट वी नो कि हमारी रेंज कहां है, एंड कीप स्वर्लिंग इट साथ साथ, बिकॉज हमने रिएक्शन देखो, कलर स्टेज एंड लीव्स, विल दिस कलर स्टे? ओके, मेरे से एक दो ड्रॉप ज्यादा डल गए, बट दिस इज द पिंक कलर दैट वी हैव टू अचीव. हम इधर देखेंगे एंड द टाइट्रेशन वैल्यू इज एग्जैक्टली 11 सेंटीमीटर क्यूब. सो अब हम क्या करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर रफ टाइटर. अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होती, एक और चीज है कि थोड़ा सा मेरा केमिकल साइड पे लग गया, सो आई विल swirl इट, एंड इफ द कलर स्टिल स्टेज, दिस लाइट पिंक इज योर एंड पॉइंट. बच्चों, एक चीज आपने क्लियरली ध्यान देना है, एक चीज पे खास तौर पे, ये देखो, इफ यू कैन नोटिस द लाइट पिंक कलर अगेंस्ट द व्हाइट, यू कैन फाइंड आउट. एक चीज पे आपने ध्यान देना है, समटाइम्स इट हैपेंस कि आप लोग जब कैलकुलेशन पार्ट पे आ रहे हो, कलर चला जाता है, इससे भी लाइट कलर इफ इट स्टेज तो वो ठीक है. सो नाउ दिस इज द लाइट पिंक कलर, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ अ redox titration, एंड हम इसी बेसिस पे कैलकुलेशंस करते हैं, एंड लेट्स डिस्कस द कैलकुलेशंस नाउ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ रफ टाइट्रेशन, और वो कहता है परफॉर्म अ रफ टाइट्रेशन एंड रिकॉर्ड योर ब्यूरेट रीडिंग्स इन द स्पेस बिलो. तो इसका मतलब आपने ब्यूरेट की रीडिंग्स लिखनी होती है. रीडिंग्स में क्या आता है, वी हैव द इनिशियल रीडिंग स्लैश सेंटीमीटर क्यूब विच वाज 0.4 centimeter cube in our case, and final reading. Which was 11.0 centimeter cube. 0 होता है वैसे, अभी उस पर बात करते हैं. So the final answer will be 10.60 centimeter cube is the rough titer. 2 decimal places are very important बच्चों, 2 decimal places. So that is what we have for initial reading and the final reading for rough titration. अब आते हैं टेबल की तरफ. A very important thing in any titration. वो कहता है multiple करें calculations, carry out as many accurate titration as you think necessary to obtain consistent results. What do we mean by consistent results? वो results जिनका 0.1 centimeter cube का difference है, इससे ज्यादा difference सही नहीं है. Make certain that any recorded results show precision of your, वही बात precision आती है उससे. Record all the period readings. अब मैंने 3 बनाई है, वैसे आपको 2 ही चाहिए होती है. You need only 2 values. अब initial reading अगर मेरी इसमें let's say एक में 0.2 आती है, I was certain कि मेरी rough titration was accurate, तो I can use my rough titration as a value, but 2 titration जरूर करना है at least. एक रफ और एक दूसरी. अगर दोनों की वैल्यूज कॉन्कोर्डेंट आ रही है, सेम आ रही है, या एक के डिफरेंस पे आ रही है, गुड टू गो. रफ को ही नीचे कॉपी कर लेना, परफेक्ट. बट ऐसा है कि रफ में 10.6 आ रही है, रेगुलर में 15 आ रही है, तो इसका मतलब गलती हुई है. फिर हम एक और करेंगे, देखेंगे किस तरफ बात ज्यादा जा रही है. सो एक अगर मैं कहता हूं 0.2, अगली मैं कहता हूं 0.20, सॉरी, there should be 2 decimal places. Final अगर मैं कहता हूं 10.90, so the difference becomes 10.80, sorry 70. एक मैं वैल्यू यही ले लेता हूं 0.40, 11.00 and 10.60. अगर आप वैल्यू 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो, if you have a tight burette जिसमें white markings है, you can start it from 0 as well if there are white markings. 0.00 and 11.00. Now let's say मेरे पास ये 3 वैल्यूज है, मैंने कहा 2 भी एम्पल है if there are concordant, 0.1 का डिफरेंस है. What do I see? These two have a difference of 0.1 centimeter cube, while जो ये वाली है ये किसी और ही हवाओं में चल रही है. So we do not count this one. आप बेशक टेबल में बना लो, उसको कैलकुलेशंस का पार्ट ना बनाओ. So let's move forward. From your accurate titration results, obtain a suitable value for the volume of FP1 to be used in your calculation.
अब हमने सुटेबल वैल्यू, हमने देखा कि दो वैल्यूज हैं, तीन वैल्यूज थी। ऐसा नहीं करना, अ कॉमन मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स, 10.60, 10.70, 11.00 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज है, बट नो, 11 को आपने एक्सक्लूड करना है अगर आपकी तीसरी वैल्यू आती है। You need two concordant values which are close to each other. So I will not take 11, I will just use two values. I will divide them by 2. And my final answer will be 10.65. An average of these two values. इसको round off ना करना. Students were like, sir, ये 65 है तो इसको 70 कर दूं. अगर 70 है तो फिर मुझे point ही क्या था average लेने का. So keep it 65 बच्चों, very important. Give your answers in appropriate number of significant figures. एक मार्क सिर्फ इस चीज का है. Now what are the appropriate number significant figures इधर? The ones given in the question. 3 significant figures. 3 significant figures. So these are your appropriate significant figures. Use your answer to B, जो हमने ऊपर calculate किया, to calculate the number of moles of potassium manganate which reacted with 25 centimeter cube of Fb2. So we have the volume of potassium Fe1. So N equals to C into V. Volume हमारे पास है 10.65 divided by 1000. Concentration पे आते हैं जब 0.02 mole per dm cube. So let's calculate the value. Two point 2.13 into 10 raised to power minus 4. 3 significant figures. Good to go. एक number secure. Remember one thing, it's never the marks for your answers. It's the marks of the formula. It's the marks of significant figures. जैसा ऊपर mentioned है. If you make an error in your titration readings, the error carry forwards. तो इधर भी, if you look at those 7 marks here, एक मार्क है रफ टाइट्रेशन का, एक मार्क है इन सारी वैल्यूज को लिखने का, देन डेसिमल फिगर्स का कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, एक पूरे पैटर्न ऑफ टेबल का, एंड 3 मार्क्स फॉर द एक्यूरेसी ऑफ योर रिजल्ट्स. सो अगर आप रिजल्ट गलत करते हो, एक रेंज होती है, सो आपका 1 मार्क लूज होगा, जरा और ऑफ जाते हो 2 मार्क्स लूज होंगे, बहुत ही गलत करते हो 3 चले जाएंगे. बाकी अगर आप सारी कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो, यू वोंट लूज अ सिंगल मार्क, बिकॉज इसमें एरर कैरी फॉरवर्ड होता है. यूज योर इंफॉर्मेशन ऑन पेज 2 टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Fp2. अब आयरन के मोल्स हमें कैसे पता लगेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन? MnO4 के मोल्स हमें पता है, आयरन के मोल्स निकालने हैं. वी सिंपली यूज दिस इक्वेशन 1:5. सो इफ मैंगनेट के मोल्स हैं 1, आयरन के मोल्स है 5. मैंगनीट की वैल्यू हमारे पास है 2.13 into 10 power minus 4. I will multiply this value by 5. And this is, we are back to this value, 1.065 into 10 power minus 3. So this is the value for the moles of iron 2. अब वो कह रहे कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन 2 प्रेजेंट इन 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Fb2. अब वो मास मांग रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा. पहली बात, मोल्स आपके पास है, MR आयरन का है 55.8. सो N इक्वल्स टू मास ओवर MR. सो मोल्स है 1.065, मास पता नहीं, MR है 55.8. So we multiply this value by 55.8 and the answer is 0.0594. 3 significant figures बच्चों, do not forget that. So this is the mass of iron in the sample. अब वो कह रहे हैं calculate the percentage by mass of iron in the sample of iron wire. Now let's look at this one. आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बना था 6.02 ग्राम ऑफ आयरन वायर विद सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वाज 1 dm क्यूब. आपने कितना यूज किया? 25 सेंटीमीटर क्यूब. बार बार वो आपके लिए कह रहा है
कि 25 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Fb2 में कितना था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो 1 dm क्यूब की नहीं है, दैट ओनली टॉक्स अबाउट 25 सेंटीमीटर क्यूब। सो हम यहां रेशियो बनाएंगे 1000 रेशियो 25, और 25 की वैल्यू है अगर 0.0594, so what will be the value of the mass of iron in 1000 centimeter cube? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, we simply multiply this by 40 क्योंकि 40 का रिलेशन है। So this is 2.38 grams in 1 dm cube. अब हम निकालेंगे परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास का तरीका क्या है? टोटल का मास, टोटल आयरन वायर का मास। सो हमने 1 dm क्यूब में 6.02 ग्राम आयरन वायर ऐड की थी। सो दैट वाज द आयरन वायर जो टोटल मास था। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन, 2.38 divided by 6.02 and we multiply this value by 100 into 100 divided by 6.02. This becomes 39.5%. So इस तरह हमने कैलकुलेट किया। अगर आपको डाइल्यूशन का सवाल आता है, लेट्स से KMnO4 में डाइल्यूशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। I have discussed dilution in detail in my last lecture where I've talked about redox titration with hydrogen peroxide and KMnO4. Last question, reasoning वाला, उसी में also we talk about percentage error. मैं दोबारा repeat करता हूं आपके लिए। A student suggested that when a piece of iron wire was dissolved in a known volume and concentration of sulfuric acid, the number of moles of iron that reacted with the acid could be determined by working out how much acid was left after the reaction. The amount of excess acid could be determined by titrating the mixture with known concentration of sodium hydroxide. अच्छा, वो कह रहे हैं कि आयरन का जितना मास बचा वो हमने क्या किया, एक्सेस एसिड जो बचा आयरन सल्फेट बनाने के बाद उसको हमने उसी सोल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, पानी बना दे, सॉल्ट बना दे। तो कह रहे हैं वो सही है या गलत? भाई कंप्लीटली गलत। 2 वजह। पहली वजह, सबसे इंपॉर्टेंट वजह, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो आयरन के सोल्यूशन के अंदर। कैटायन टेस्ट, आयरन 2 NaOH will give precipitate with Fe2। तो वो तो पूरी कहानी बदल देगा इस केस में, आपका आंसर ही बदल जाएगा बिकॉज एक प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। सो दैट इज रॉन्ग। और साथ ही साथ जो इंप्यूरिटी है, इंप्यूरिटी कैन ऑल्सो रिएक्ट विद NaOH और एक्सेस एसिड, तो फिर तो ये तरीका ही गलत है, हम इस तरह नहीं कर सकते। Last, before wrapping up this lecture, a very important concept is of percentage error. Remember one thing बच्चों, percentage error instrument की वजह से होता है, uncertainty की वजह से होता है। What is the uncertainty? एक instrument की least count का half, like burette की least count है 0.1 centimeter cube. So what is the uncertainty? It's the half of this. क्योंकि अगर हाफ से कम होगा तो हम वैल्यू पिछली रखते हैं, लाइक 23.3 कह देंगे, हम 23.34 या 32 नहीं कहेंगे। अगर 23.36 होती है तो हम 23.4 कह देंगे। सो हाफ का होता है हमेशा। एनी एरर इज द हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। सो ब्यूरेट का एरर इज या अनसर्टेनिटी इज 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। सो हम क्या करते हैं एरर के लिए, हम अनसर्टेनिटी की वैल्यू लिखते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की, वी मल्टीप्लाइड बाय n एंड डिवाइडेड बाय द रीडिंग, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। n क्या है? द टाइम्स आपने वो रीडिंग ली हो। लाइक अगर आप ब्यूरेट में हमेशा इनिशियल और फाइनल ले रहे हो तो इसका मतलब यू आर फेसिंग द एरर ट्वाइस। सो 0.05 into 2 एंड यू डिवाइड दिस बाय द रीडिंग जो आपकी टाइट्रेशन की रीडिंग आई 10.60। पिपेट की बात करते हैं, पिपेट में भी मेजरमेंट्स है,
पर बच्चों पिपेट के केस में यू ओनली टेक द रीडिंग वंस, जब 25 हुआ इनिशियल रीडिंग, फाइनल थी 0, खत्म कर दिया. सो पिपेट में देयर इज एरर ओनली वंस, सो n की वैल्यू वंस होगी. थर्मोमीटर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर ट्वाइस. नीचे रीडिंग लोगे एंड हाउ टू मिनिमाइज द एरर. सिंपल तरीका है, अगर आप नीचे की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे एरर कम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो जाएगा. इफ आई हैव अ ब्यूरेट की वजह से आई कैन नॉट डिक्रीज द एरर, क्योंकि ब्यूरेट का एरर तो वही फिक्स रहेगा, इनिशियल रीडिंग भी होगी फाइनल रीडिंग भी होगी. डिफरेंस आता है जो हम रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं. So students, that was all about redox titration. I hope it was helpful for you. Now in the next lectures, we will talk about other practicals of A-levels chemistry. So thank you so much for being here with me. Best wishes and Allah Hafiz.